And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asid Government Guru. Let's compete. Today, I will discuss CCS Leave Rules 1972. It is incredible MCQ part 4. In this part, I will discuss 11 MCQs and also I will discuss Rule 17 and 18. Both the rules are very important one. Rule 17 related to leave not to be granted in certain circumstances, and 18 is deleted. Okay, and rule 19 also. I will discuss grant of leave on medical certificate to gazetted and non-gazetted government servants. Both the rules are very important one. Basically related to the medical certificate to gazetted and non-gazetted government servants. So I will explain briefly, and 11 MCQs also very standard MCQs. So nowadays those type of questions are coming in the examination. That type of question I have framed. So my friends, please subscribe my channel Asid Government Rule Guru. Let's compete. Please subscribe my channel, like my channel, and share my channel. So that you can get quality videos in subsequent time. So if you see my video, please click on a subscribe button. So if any queries there, also you can contact with my WhatsApp number. It is 8327782034. If any doubt is there, so you contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss incredible MCQ part 4. It is related to the CCS Leave Rules 1972. Achha, question number 1 you see is a very lengthy question. Question number 1: a disciplinary authority completes an inquiry, right, under Rule 14 of the CCA Rules 1965, and formally signs a final order imposing a penalty of compulsory retirement on a government servant on 14th July. However, the order is scheduled to be served to the employee on 17th July. On 15th July, the employee applies for 30 days of EL on urgent personal grounds. Can the leave sanctioning authority grant this leave? आप देखिए, ये रूल पोजीशन को मैं थोड़ा बता देता हूँ. तो ये इट इज रिलेटेड टू द रूल 17. तो रूल 17 में क्लियरली मेंशन है कि लीव नॉट टू बी ग्रांटेड इन सर्टन सर्कमस्टांसेस. तो ये जो रूल 14 है ये मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग है. ठीक है, तो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग का फाइनल ऑर्डर ये था जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने फाइनल ऑर्डर दिया था कंपल्सरी रिटायरमेंट. तो रूल 17 में क्लियरली मेंशन है कि डिसमिसल, रिमूवल एंड इन केस ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट once imposing punishing authority, it means disciplinary authority has decided to dismiss, remove or compulsory retire from government service, then leave cannot be granted. Once it has decided means leave cannot be granted. ये रूल 17 बोल रहा है. ओनली मेजर पेनल्टी केस में 3 थिंग्स: डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट. वंस competent punishing authority has decided means so the leave cannot be granted. तो यहां पर क्या है कि 14th में डिसीजन लिया गया. ठीक है, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने 14th जुलाई में इंपोज किया पेनल्टी कंपल्सरी रिटायरमेंट का. ठीक है, और 17th जुलाई में एम्प्लॉय ने रिसीव किया ऑर्डर को. 14th में इंपोज किया मगर 17th में एम्प्लॉय ने रिसीव किया ऑर्डर को. बट उसका मिडिल में 15th जुलाई में एम्प्लॉई अप्लाइज फॉर 30 डेज EL फॉर इमरजेंसी ग्राउंड. कैन द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी ग्रांट्स दिस लीव? तो उसमें क्लियरली मेंशन है कौन सा डेट में. देखिए 14th जुलाई में ऑलरेडी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैज डिसाइडेड. ओके, इट मीन्स हैज डिसाइडेड मीन्स ऑलरेडी इम्पोज्ड हियर. बट अकॉर्डिंग टू द रूल इफ वंस इट हैज डिसाइडेड, तो यहां पर ऑलरेडी इट इज इम्पोज्ड, सेम थिंग. ठीक है, तो लीव कैनॉट बी ग्रांटेड. तो इस केस में लीव ग्रांट नहीं होगा चाहे ऑर्डर नहीं मिला है कंसर्न एम्प्लॉय को, क्योंकि 14th में इंपोज हुआ मगर 17th में ऑर्डर मिला. तो 15th में वो अप्लाई कर दिया एम्प्लॉय. ओके, 30 डेज EL. तो 14th जुलाई में तो डिसीजन ले लिया ना. ठीक है, कॉम्पिटेंट पनिशिंग अथॉरिटी की कंपल्सरी रिटायरमेंट वो इंपोज कर दिया. तो इस केस में जब वो डिसाइड कर दिया मीन्स
लीव ग्रांटेड नहीं होगा। तो अभी आपको आंसर मिल जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा है, कैन द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी ग्रांट दिस लीव? इस केस में लीव ग्रांट नहीं होगा 15th को, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नो, बिकॉज द कॉम्पिटेंट पनिशिंग अथॉरिटी हैज ऑलरेडी टेकन द डिसीजन टू कंपल्सरी रिटायर द एम्प्लॉय, ओके, वेयरिंग द ग्रांट ऑफ लीव। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रूल पोजीशन को देखेंगे आप, रूल 17, रूल पोजीशन देख लीजिए, सीसीएस लीव रूल्स 1972 रूल 17, इट इज लीव नॉट टू बी ग्रांटेड इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, ये क्लियरली मेंशन है। आप देखिए रूल पोजीशन, द रूल अप्लाइज ओनली आफ्टर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू इम्पोज। वंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड कर दिया कि डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट इंपोज होगा एज मेजर पेनल्टी, तो वंस डिसाइड कर दिया मींस लीव ग्रांट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर अंडरस्टूड। तो वही दिया है रूल 17 रूल पोजीशन, लीव नॉट टू बी ग्रांटेड, ओके, इन सर्टन सर्कमस्टांसेस मींस जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग चल रहा था और फाइनल डिसीजन ले लिया कि इस तरीके का पेनल्टी इंपोज होगा, वंस डिसीजन ले लिया मींस लीव ग्रांट नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में which form is used by gazetted government servant to submit a medical certificate for leave? कौन सा फॉर्म यूज करेगा गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट मेडिकल सर्टिफिकेट देकर लीव लेने के लिए? ओके, तो फॉर्म 4, फॉर्म 5, फॉर्म 3, फॉर्म 3A, इट इज फॉर्म 3। जो गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए फॉर्म 3, ओके, वो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर लीव जो होता है फॉर्म 3 में, फिटनेस सबके लिए फॉर्म 5, मगर आप देखेंगे नॉन गेजेटेड, सपोज नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए फॉर्म 4 है, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म 4, ठीक है, मगर गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए फॉर्म 3 और दोनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म 5, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं अभी आपको इन्फॉर्म किया कि गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का जो मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्म होता है फॉर्म 3 है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें आप देख लीजिए रूल पोजीशन, रूल 19 सबसेक्शन आई, ओके, सीसीएस लीव रूल्स 1972 रूल 19 सबसेक्शन आई में आप देख लीजिए, ये क्लियरली मेंशन है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा रूल 19 को, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, अंडर व्हाट स्पेसिफिक कंडीशन कैन ए गेजेटेड और नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट ऑब्टेन ए मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम ए प्राइवेट हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड अंडर सीजीएचएस और सीएसएमए रूल्स? देखिए यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट स्पेसिफिक कंडीशन कैन ए गेजेटेड और नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट ऑब्टेन ए मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम ए प्राइवेट हॉस्पिटल? ये प्राइवेट हॉस्पिटल को, प्राइवेट हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय suppose department of it means recognized under CGHS or CMS rules में, if it is recognized by Ministry of Health and Family Welfare, okay, if it is recognized by Ministry of Health and Family Welfare, ठीक है। तो यहां पर ये स्पेसिफिक कंडीशन यहां पर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि under what specific condition can a gazetted or non-gazetted government servant obtain a medical certificate from a private hospital recognized under CGHS और CSMA rules? आप देखिए जो डिजीज है, बेसिकली हार्ट डिजीज है कि कैंसर है एटसेट्रा, दिस टाइप ऑफ क्रिटिकल डिजीजेस केस में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और इंडोर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीज और कैंसर, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जहां पर हार्ट ट्रीटमेंट होता है कि कैंसर ट्रीटमेंट अच्छा होता है, और वो एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और यहाँ पर सपोज इंडोर ट्रीटमेंट होता है इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और इंडोर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, तो इस केस में ठीक है जो मेडिकल सर्टिफिकेट उसको कंसिडर किया जाएगा। तो स्पेसिफिक कंडीशन मीन्स ऑप्शन बी, ओके, नॉट इन अदर केसेस, बट यू रिमेंबर दैट कि प्राइवेट हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर and special treatment is there like critical diseases like heart disease or cancer, okay, it is option B is the correct answer।
ये भी आप देख लीजिए, रूल पोजीशन में बता देता हूँ, 19 सबसेक्शन आई। ओके, ये रूल पोजीशन है। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सभी को एक्सप्लेन करेंगे जब रूल 19 में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए नॉन गेजेटेड government servant is a CGHS beneficiary but falls ill away from CGHS area and no authorized medical attendant is available within a radius of dash, they may produce a certificate from a registered medical practitioner। देखिए, एक नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो CGHS बेनिफिशियरी है, मगर सपोज वो कोई टूर ट्रेनिंग में गया था और वो जो एरिया को गया था, जो हेडक्वार्टर न्यू हेडक्वार्टर को गया था, वो एक्चुअली CGHS एरिया में नहीं आता है। तो वहां पर वो उसको सर्टिफिकेट लेना है ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट से, CSMA रूल्स। सपोज वो CGHS बेनिफिशियरी है मगर अभी ट्रेनिंग टूर में वो चला गया नॉन CGHS एरिया, और यहाँ पर वहीं पर एक्चुअली इज सफरिंग इन इल, तो इन दैट केस एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द CSMA रूल वो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट से मेडिकल सर्टिफिकेट लेगा, मगर विद इन हाउ मच किलोमीटर रेडियस सपोज ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट इज नॉट अवेलेबल, then he must collect a certificate from the registered medical practitioner। याद रखिए 8 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिए। तो CSMA रूल्स में क्लियरली मेंशन है कि यदि 8 किलोमीटर रेडियस के अंदर ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट नहीं है तब हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे। मगर ये जो नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली ही इज ए CGHS बेनिफिशियरी बट ही हैज गॉन फॉर टूर एंड ट्रेनिंग and he is suffering in ill, so that he must obtain a certificate from the authorized medical attendant according to the CCSMA rules, medical attendance rules, but actually within 8 kilometer radius authorized medical attendant is not available, so he must produce certificate actually given by registered medical practitioner। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, Question number 5, a medical certificate from a registered Ayurvedic, Unani or homeopathic medical practitioner may be accepted for a non-gazetted employee provided। यहाँ पर दिया है कि जो रजिस्टर्ड चाहे आयुर्वेदिक, उनानी और होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर से जो मेडिकल सर्टिफिकेट कलेक्ट करेगा नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोवाइडेड, किस कंडीशन में। मगर यहाँ पर कंडीशन देखिए, ये सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट भी एप्लीकेबल होगा मगर जब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्चुअली वो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा, जिस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट से आप ये सर्टिफिकेट ला रहे हो, नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट वो चाहता है कि आयुर्वेदिक, उनानी और होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल सर्टिफिकेट कलेक्ट करेगा, तो इस केस में एक्चुअली द कॉन्सर्न स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली वो डिक्लेयर किया है कि उसका एम्प्लॉय को ये सर्टिफिकेट एक्चुअली कंसीडर किया जाएगा यदि वो कलेक्ट करेंगे आयुर्वेदिक, उनानी और होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर, तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसी स्टेट गवर्नमेंट में सपोज सफरिंग इन इलनेस एंड देन व्हेन ही कलेक्ट एक्चुअली द मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, उनानी मेडिकल प्रैक्टिशनर, देन वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखिए 4 ऑप्शंस। द एम्प्लॉय हैज ए वैलिड आयुष कार्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव्स इट ऑन ए केस बाय केस बेसिस, द स्टेट गवर्नमेंट वेयर द एम्प्लॉय फॉल्स इल एक्सेप्ट सच सर्टिफिकेट्स फॉर इट्स ओन एम्प्लॉइज। ये करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। द पीरियड ऑफ लीव रिक्वेस्टेड इज लेस देन 7 days, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इट मीन्स एक नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी ला सकता है आयुर्वेदिक, उनानी और होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल सर्टिफिकेट, मगर रूल है कि उसी स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली डिक्लेयर किया है उसका एम्प्लॉय के लिए भी यदि मेडिकल सर्टिफिकेट कलेक्ट किया जाएगा कॉन्सर्न आयुर्वेदिक, उनानी और होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर से, वो एप्लीकेबल होगा, वो कंसीडर किया जाएगा, तब उस केस में होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, what is the designated form used by the medical authority to certify government servant who has acquired a disability? disability केस में what is the designated form क्या है? जिस फॉर्म में एक्चुअली क्लियरली मेडिकल अथॉरिटी मेंशन करेगा कि नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, की एक्सटेंट कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी है, तो वो उसमें मेंशन करेगा।
तो आप रूल पोजीशन जानना चाहते हो तो वो क्लियरली मेंशन है 19, रूल 19 आप देख लीजिए सबसेक्शन 2 में, फॉर्म 3A, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो डिसेबिलिटी के लिए जो फॉर्म यूज होता है जिसमें मेडिकल अथॉरिटी क्लियरली मेंशन करता है कि ये नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है, कि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है, कि फ्रॉम व्हिच डेट एक्चुअली डिसेबिलिटी हैज ऑकर्ड और मैनिफेस्टेड, कि क्या प्रोस्पेक्टस है कि फर्दर गवर्नमेंट सर्वेंट वर्क ड्यूटीज कर सकता है, कि उसमें मेंशन करेगा कि परमानेंटली द कंसर्न डिसेबल एम्प्लॉय इज इनकैपेसिटेटेड फॉर फर्दर सर्विस, तो उसमें मेंशन होगा। तो फॉर्म 3A याद रखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रूल पोजीशन सीसीएस लीव रूल्स 1972, रूल 19 सबसेक्शन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, who is competent to issue a certificate of disability in form 3A for an employee requiring specialized treatment। आप जानते हो कि फॉर्म 3A तो डिसेबिलिटी रिलेटेड है, ठीक है। तो डिसेबिलिटी केस में जो सीजीएचएस सपोज द कंसर्न एम्प्लॉय कवर अंडर सीजीएचएस, वो सीजीएचएस डिस्पेंसरी से ला सकता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का डॉक्टर से, कि नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नहीं तो कोई स्पेशलिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन केसेस रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। वही डिसेबिलिटी फॉर्म 3 है तो डिसेबिलिटी रिलेटेड है, मगर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, कोई स्पेशलिस्ट एक्चुअली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उस केस में वही क्वेश्चन दिया है, हु इज कॉम्पिटेंट टू इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इन फॉर्म 3A फॉर एन एम्प्लॉय रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी, स्पेशलिस्ट इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। रूल पोजीशन बोल रहा है रूल 19(2)(a), ठीक है। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि यदि आप सीजीएचएस कवर करते हो, तो सीजीएचएस में आते हो, तो डॉक्टर ऑफ सीजीएचएस हॉस्पिटल, नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नहीं तो स्पेशलिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन केसेस रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, और मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक पर्सन है जो सफरिंग इन मल्टीपल डिसेबिलिटी, उसके लिए मेडिकल बोर्ड। तो ये क्लियरली मेंशन है, आप देखिए चैप्टर एक्स ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ठीक है। तो इसको भी डिस्कस करेंगे, तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statements is true regarding the medical certificate of disability under rule 19(2)(b of CCS leave rules 1972। 19(2)(b क्या बोल रहा है कि मेडिकल रूल पोजीशन के बता देता हूं। ये जो रूल पोजीशन है ये बता रहा है कि नो रिफरेंस, कोई रिफरेंस का जरूरत नहीं है, नो रिफरेंस फ्रॉम द, आप सुनिए फर्स्ट रूल 19(2)(b को, नो रिफरेंस फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑफिस और एनी अदर अथॉरिटी मे बी रिक्वायर्ड फॉर इश्यू ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। कोई डिसेबिलिटी रिलेटेड में मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू के लिए आप किसी का रिफरेंस का जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ रिफरेंस फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑफिस और एनी अदर अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। यदि एक कंसर्न एम्प्लॉय डिसेबल है तो वो जाकर सपोज सीजीएचएस कवर है, सीजीएचएस डॉक्टर, नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नहीं तो स्पेशलिस्ट, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हो रहा है, स्पेशलिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट रिलेटेड टू द डिसेबिलिटी, नहीं तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, मेडिकल बोर्ड वहां से ला सकता है। इसमें कोई रिफरेंस का जरूरत नहीं है, कोई हेड ऑफ द ऑफिस से कोई रिफरेंस चाहिए, कोई एनी अदर अथॉरिटी से रिफरेंस चाहिए फॉर इश्यू ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो यहां पर आपको ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द अथॉरिटी competent to grant leave wants to secure a second medical opinion. What is the minimum rank required for the government medical officer conducting this examination? सपोज आप क्या किया कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट आप दिया कि मेडिकल जो एमसी में लिख देता हूं, मेडिकल सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन है जो नेचर ऑफ इलनेस एक है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि नेचर ऑफ इलनेस, और रेकमेंड किया गया है 60 डेज लीव। ओके, देखिए मेडिकल लीव जो है ना वो एक स्पेशल लीव नहीं है,
आपको इट मीन्स कोई मेडिकल ग्राउंड में, ठीक है, आप यू आर सफरिंग इन इलनेस, तो मेडिकल ग्राउंड में आप लीव लेना चाहते हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड में आप लीव लेना चाहते हो। तो आपका कोई भी लीव अकाउंट, चाहे ईएल से डेबिट होगा, चाहे एचपीएल, चाहे कम्यूटेड लीव, इट मीन्स 2 एचपीएल कन्वर्ट टू फुल 1 डे, चाहे ईओएल, लोगे तो आपको सैलरी विदाउट सैलरी, विदाउट पे। सपोज आप ईओएल विथ मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वहां पर आपको विदाउट पे, ये भी हो सकता है। तो आप ये बोलोगे कि मेडिकल लीव एक अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल ग्राउंड में आप लीव ले सकते हो, जो लीव अथॉरिटी हैज ग्रांटेड लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड। ऑन मेडिकल ग्राउंड में आपको छुट्टी मिल रहा है, मीन्स आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। और क्वेश्चन वहां पर आता है, मेनी पीपल दे आस्क क्वेश्चन कि फ्रॉम व्हिच लीव अकाउंट इफ द कंसर्न एम्प्लॉई वांट टू गेट लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड, कौन सा लीव अकाउंट से, चाहे ईएल से होगा, एचपीएल से होगा, कम्यूटेड लीव होगा, लीव नॉट ड्यू होगा। लीव नॉट ड्यू में क्या है, आपको आगे में जो एचपीएल मिलेगा, अभी आपका एचपीएल नहीं है, आपका कोई लीव नहीं है, तो एलएनडी आप लो, तो आगे में जो एचपीएल मिलेगा उससे वो एडजस्ट होगा। नहीं तो ईओएल आपका मेडिकल सर्टिफिकेट देकर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट पे, ठीक है। तो इस केस में सेकंड मेडिकल ओपिनियन में, जैसे मेरा एग्जांपल में, इमेजिनरी एग्जांपल में बताया, मेडिकल सर्टिफिकेट नेचर ऑफ इलनेस है, रिकमेंड किया गया है 60 डेज लीव, मगर लीव अथॉरिटी चाहता है कि सेकंड मेडिकल ओपिनियन, मेडिकल अथॉरिटी चाहता है कि सेकंड मेडिकल ओपिनियन चाहता है। रूल पोजीशन में बताता हूं, रूल 19 सबसेक्शन 3 में क्लियरली है। तो सेकंड मेडिकल ओपिनियन, तो सेकंड मेडिकल ओपिनियन में सपोज आप लेंगे, तो जो डॉक्टर आपको एग्जामाइन करेगा वो बोल सकता है नहीं 60 डेज नहीं, 30 डेज चाहिए मेडिकल ग्राउंड में, इतना दिन क्या होगा, 30 डेज में कंसर्न एम्प्लॉय फिट हो जाएगा। तो सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज जो फर्स्ट मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है उसमें लीव अथॉरिटी थोड़ा डाउट कर रहा है कि इतना दिन लीव है मेडिकल ग्राउंड में, आपका लीव अकाउंट से डेबिट होगा मगर वहां पर वर्क तो अफेक्ट होगा ना, तो उस केस में सेकंड मेडिकल ओपिनियन हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है सेकंड मेडिकल ओपिनियन में जो आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको चेक करेगा, तो वो मेंशन कर सकता है कि 60 डेज फर्स्ट मेडिकल सर्टिफिकेट में 60 डेज लीव रिकमेंड किया गया था, अभी मैं 30 डेज रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि इजीली इट मीन्स ही मस्ट बी फिट, इट मीन्स आफ्टर 30 डेज लीव, ये भी हो सकता है। तो उस केस में भाई बताया, जो सेकेंड मेडिकल ओपिनियन लिया जाएगा, व्हाट इज द मिनिमम रैंक, जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर जो एग्जामाइन करेगा उसका मिनिमम रैंक क्या होगा, उसका मिनिमम रैंक सिविल सर्जन और स्टाफ सर्जन, मिनिमम रैंक सिविल सर्जन और स्टाफ सर्जन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये रूल पोजीशन, रूल 19 सबसेक्शन 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्लियरली मेंशन है कि डज द मियर ग्रांट ऑफ ए मेडिकल सर्टिफिकेट कन्फर ए राइट टू लिव अपॉन द गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा, यदि डज द मियर ग्रांट ऑफ ए मेडिकल, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया, क्या उसमें आपको आप लीव ले जाओगे, ऐसे आपका राइट है? ऐसा नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट होने से भी आपका परमिशन चाहिए, लीव अथॉरिटी जो है उसका परमिशन चाहिए, ठीक है। आप ये है रूल पोजीशन आप देख लीजिए, इसमें क्लियरली रूल 19 सबसेक्शन 5 क्लियरली मेंशन किया है कि द ग्रांट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट डज नॉट itself confer upon the government servant concerned any right to leave. The medical certificate shall be forwarded to the authority competent to grant leave and orders of that authority awaited. तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट को फॉरवर्ड करोगे लीव अथॉरिटी को, जो कॉम्पिटेंट लीव अथॉरिटी है, फिर आप वेट करना है आपका लीव सैंक्शन के लिए। तो आप ये मत मानिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट तो इशू हो गया तो मुझे लीव मिल जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉरवर्ड होगा विथ एप्लीकेशन, ओके। आप लीव अथॉरिटी को दोगे तो लीव अथॉरिटी उसको एग्जामाइन करेगा, ठीक है। फिर आप वेट करोगे कि सैंक्शन का जो उसका ग्रांट को आप अवेट करोगे, ठीक है, वेट करोगे। तो ये रूल है। तो यहां पर नो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नो इट डज नॉट कन्फर एनी राइट, द एम्प्लॉय मस्ट फॉरवर्ड इट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट को आप फॉरवर्ड करोगे एंड वेट द ऑर्डर्स ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपको वेट करना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर को, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रूल पोजीशन भी बताया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में एट इट्स डिस्क्रिप्शन
waive the production of a medical certificate for leave not exceeding how many days at a time. देखिए सपोज आप बोल रहे हो कि मुझे फीवर हुआ है, आप बोल रहे हो कि फीवर हुआ है और मैं छुट्टी लेना चाहता हूं, ओके। तो इसमें फीवर हुआ है, सपोज मुझे लीव चाहिए, आपको लीव चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए यदि 3 डेज तक कोई मेडिकल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, आप इलनेस कोई भी सपोज यू आर सफरिंग इन इलनेस, आप जस्ट इट मींस इन राइट एप्लीकेशन टू लीव अथॉरिटी, तो अप टू 3 डेज तक क्या है उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लीव सैंक्शन हो रहा है कोई मेडिकल सपोज कोई इलनेस रिलेटेड में मींस, तो उसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, ओके, बिकॉज यू आर टेकिंग लीव ऑन द नेम ऑफ इलनेस। मगर रूल है कि अप टू 3 डेज आप ऑन द नेम ऑफ इलनेस एक्चुअली यू हैव टेकन लीव, बट अप टू 3 डेज कोई मेडिकल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। मगर सपोज आप फीवर 5 डेज आप लीव ले रहे हो, फीवर है आप 5 डेज लीव ले रहे हो, चाहे कोई भी सपोज, चाहे आप ईएल ले रहे हो कि एचपीएल ले रहे हो कि 2 एचपीएल को कंबाइन करके एक फुल कम्यूटेड लीव ले रहे हो कि ईओएल ले रहे हो, ओके। तो इस केस में मोर देन 3 मीन्स आप मेडिकल ग्राउंड में लीव ले रहे हो मीन्स आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है मोर देन 3 डेज। मगर अप टू 3 डेज आप इलनेस रिलेटेड में आप लीव ले रहे हो, मगर उसमें जरूरत नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट, दे सकते हो मगर मेडिकल सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है उसको। मैंने ये नहीं है कि राइट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वेव कर सकता है, ये थोड़ा मैं क्लैरिफाई करता हूं, ये नहीं है। आप इलनेस ग्राउंड में लीव ले रहे हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, मगर अप टू 3 डेज में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको माफ कर सकता है, वेव कर सकता है, ओके। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो वेव कर सकता है। मगर मोर देन 3 डेज आप मेडिकल ग्राउंड में छुट्टी ले रहे हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, मगर अप टू 3 डेज मैंडेटरी नहीं है, मगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास राइट है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी डिसाइड करेगा, ठीक है कि नहीं। तो अप टू 3 डेज ये मत समझिए कि मैं बता दिया कि अप टू 3 डेज एक्चुअली कंपल्सरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको वेव कर देगा, ऐसा नहीं है। मगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो अप टू 3 डेज आप इलनेस ग्राउंड में लीव ले रहे हो तो वो बोल सकता है कि मैं सपोज जो मेडिकल सर्टिफिकेट देना जो कंपल्सरी होता है वो उसको वेव कर सकता है, ठीक है, उसमें आपको छूट मिल सकता है, मगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डिसीजन है। मगर मोर देन 3 डेज मीन्स आपको देना ही पड़ेगा, इलनेस ग्राउंड में आप लीव ले रहे हो तो देना ही पड़ेगा। और एक मजा बात बता रहा हूं कि जो मेडिकल ग्राउंड में आप छुट्टी ले रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेडिकल लीव एक स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल ग्राउंड में आप इलनेस ग्राउंड में छुट्टी ले रहे हो तो वो किस लीव अकाउंट से डेबिट होगा, चाहे ईएल है, एचपीएल है, कम्यूटेड लीव है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, अभी रूल को थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल 19। रूल 19 का मेडिकल सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी दे दिया लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स में। मैं अभी बताया कि मेडिकल ग्राउंड्स में यदि आप लीव ले रहे हो, मेडिकल ग्राउंड्स में लीव ले रहे हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, मगर अप टू 3 डेज, अप टू 3 डेज यदि मेडिकल ग्राउंड में आप छुट्टी ले रहे हो तो वहां पर लीव अथॉरिटी हैज डिस्क्रिशनरी पावर टू वेव इट, वो छूट दे सकता है, मगर मोर देन 3 डेज इट इज मैंडेटरी, ठीक है। तो वही है, तो फर्स्ट है लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स should normally be supported by medical certificate from the prescribed medical authority। अच्छा, गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए हम देखेंगे, गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट यदि मेडिकल ग्राउंड में लीव ले रहा है तो वो फॉर्म 3 में जो मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करेगा, फॉर्म 3, ठीक है। और सर्टिफिकेट कौन इश्यू करेगा, यदि सीजीएचएस बेनिफिशियरी है, सीजीएचएस डिस्पेंसरी, कोई भी सीजीएचएस डिस्पेंसरी है, ओके, सीजीएचएस हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। यदि नॉट ए सीजीएचएस बेनिफिशियरी तब ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट अकॉर्डिंग टू द सीएसएमए रूल्स। यदि आप सीजीएचएस बेनिफिशियरी नहीं हो तो आप ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट से मेडिकल सर्टिफिकेट लो, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 को फॉलो किया जाएगा। और नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है, यदि आप कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल मींस hospital recognized by Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare, for hospitalization or specialized treatment like heart disease, cancer, a certificate from an authorized doctor of a CGHS or CSMA
रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, चाहे उसको सीजीएचएस उसको रिकॉग्नाइज किया है कि सीएसएमए रूल्स उसको रिकॉग्नाइज किया है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज प्राइवेट हॉस्पिटल ओके का जो ऑथराइज डॉक्टर एंड दिस प्राइवेट हॉस्पिटल ऑल्सो कवर्ड अंडर सीजीएचएस और सीएसएमए रूल्स, ठीक है। तो ये सब इश्यू कर सकते हैं गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट को मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 3 में, ये 19 सबसेक्शन आई, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन आप देख लीजिए गेजेटेड, अच्छा गेजेटेड एम्प्लॉय आउटसाइड सीजीएचएस एरिया, सपोज टेम्पोररी पीरियड के लिए कोई गेजेटेड एम्प्लॉय वो जो एरिया को गया, वो ट्रेनिंग की टूर में वो बाहर चला गया, जिस एरिया को गया जो न्यू हेडक्वार्टर है वो सीजीएचएस कवर नहीं कर रहा है, ओके, द गेजेटेड एम्प्लॉय हैज गॉन फॉर टूर की ट्रेनिंग एंड न्यू हेडक्वार्टर एक्चुअली इट इज नॉट कवर्ड अंडर सीजीएचएस एरिया, तो वहां पर सीएसएमए रूल्स वही है, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 3 और फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म 5, और सीएसएमए रूल्स में जो सीएस सेंट्रल सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स थोड़ा रूल 1944 ये बता रहा है कि इसमें ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, ठीक है। वही है, यदि गेजेटेड एम्प्लॉय आउटसाइड सीजीएचएस एरिया में है तो सीएसएमए रूल्स उसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो वो कलेक्ट करेगा ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट से, और मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर्म 3 में और फिटनेस मिलेगा फॉर्म 5 में, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, रूल पोजीशन देखिए नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 19(1)(ii ओके, फॉर नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट सबमिटेड मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर्म 3 में मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करेगा, मगर जो नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म है वो फॉर्म 4 है। अच्छा, कौन इशू करेगा? यदि सीजीएचएस बेनिफिशियरी है, सीजीएचएस डिस्पेंसरी, नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा, इफ नॉट ए सीजीएचएस बेनिफिशियरी ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट अकॉर्डिंग टू सीएसएमए रूल्स 1944 ओके, और अदर केस में जो प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल फॉर हॉस्पिटलाइजेशन और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हार्ट डिजीज कैंसर एटसेट्रा सर्टिफिकेट फ्रॉम एन ऑथराइज्ड डॉक्टर of a recognized private hospital is also acceptable, okay, but private hospital but it must be recognized by Ministry of Health and Family Welfare, और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लाइक हार्ट डिजीज की, कैंसर की, यानी लिवर रिलेटेड डिजीज, वो प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत फेमस है एंड इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर सीजीएचएस और सीएसएमए रूल्स 1944, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, अच्छा, यदि सेम थिंग दे दिया कि नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय आउटसाइड सीजीएचएस एरिया, सपोज कोई नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय वो टूर ट्रेनिंग में चला गया और जो न्यू हेडक्वार्टर सीजीएचएस एरिया में नहीं आ रहा है, तो वहां पर वो उसके लिए तो फॉर्म 4 है मेडिकल सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए, फिटनेस के लिए फॉर्म 5 है, और वो आउटसाइड सीजीएचएस एरिया मीन्स ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट से वो मेडिकल सर्टिफिकेट कलेक्ट करेगा। अच्छा, यदि ऑथराइज इफ नो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट इज अवेलेबल विद इन 8 किलोमीटर रेडियस, याद रखिए, यदि विद इन 8 किलोमीटर रेडियस में अकॉर्डिंग टू सीएसएमए रूल्स 1944 यदि विद इन 8 किलोमीटर रेडियस में ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट किससे कलेक्ट करेगा? ओके, द सर्टिफिकेट कलेक्ट करेगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपी से, यदि जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय आउटसाइड सीजीएचएस एरिया, ओके, तो वो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट से मेडिकल सर्टिफिकेट कलेक्ट करेगा। इफ विद इन 8 किलोमीटर रेडियस ए में इज नॉट अवेलेबल, देन ही मस्ट कलेक्ट मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होगा नेचर ऑफ इलनेस और प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, तो इलनेस क्या है और वो रिकमेंड करेगा इतना दिन का लीव चाहिए, ठीक है। फिर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म 5, गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 3, नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 4, मगर दोनों के लिए फिटनेस है फॉर्म 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, स्पेशल नोट है फॉर नॉन गेजेटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल नोट फॉर नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय, ये मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द फॉलोइंग में ऑल्सो भी एक्सेप्टेड, क्या है? इफ रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट फॉर इट्स ओन एम्प्लॉइज, जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है उसका एम्प्लॉइज के लिए वो डिक्लेयर किया है कि रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिशनर, की रजिस्टर्ड यूनानी प्रैक्टिशनर, की रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, की रजिस्टर्ड डेंटिस्ट फॉर डेंटल डिजीजेस, की ऑनररी मेडिकल ऑफिसर, मगर वो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है
कि कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इनसे भी मेडिकल सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिस स्टेट में काम कर रहा है और उसको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और उसी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि इनसे भी मेडिकल सर्टिफिकेट जो कलेक्ट किया जाएगा वो रिकॉग्नाइज होगा, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कलेक्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक स्पेशल नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय के लिए, नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, रूल 19(2) जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसेबिलिटी रिलेटेड है। गवर्नमेंट सर्वेंट एक्वायरिंग डिसेबिलिटी फॉर्म 3A, जो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म है डिसेबिलिटी केस में फॉर्म 3 है। अच्छा, द मेडिकल अथॉरिटी उसमें क्या सर्टिफाई करेगा? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी, क्या नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है और परसेंटेज, कितना मिनिमम कितना परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है। अच्छा, कौन सा डेट से एक्चुअली डिसेबिलिटी ऑकर्ड, डेट फ्रॉम व्हिच डिसेबिलिटी ऑकर्ड एज फार एज मेडिकली पॉसिबल। अच्छा, वेदर द एम्प्लॉय इज लाइकली टू बिकम फिट अगेन, उसमें मेंशन होगा क्या वो अगेन फिट होकर ड्यूटी रिज्यूम कर पाएगा। इफ नॉट, वेदर द एम्प्लॉय इज कंप्लीटली एंड परमानेंटली इनकैपेसिटेड फॉर गवर्नमेंट सर्विस, ये सब मेंशन होगा फॉर्म 3 में। क्या डिसेबिलिटी नेचर है, कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी है, फ्रॉम व्हिच डेट डिसेबिलिटी ऑकर्ड, क्या अगेन द एम्प्लॉय रिगेन फिटनेस फॉर रिज्यूमिंग ड्यूटी। अच्छा, इफ नॉट, वेदर द एम्प्लॉय इज कंप्लीटली एंड परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड गवर्नमेंट सर्विस, अगेन वो गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर पाएगा, तो पूरा मेंशन होगा वही फॉर्म 3 में, ठीक है। रूल पोजीशन देखिए, रूल 19(2), ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट वन, रूल 19(2)A बोल रहा है कि कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटीज फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, हु आर द मेडिकल अथॉरिटीज टू इश्यू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो फॉर्म 3A में जो इश्यू होगा, तो वो मेडिकल अथॉरिटीज कौन है? एक है CGHS डॉक्टर, यदि आप CGHS जो डिसेबिलिटी एम्प्लॉय कवर अंडर CGHS डॉक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट, स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहा है रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज केस में मेडिकल बोर्ड। मल्टीपल डिसेबिलिटीज माने कंसर्न एम्प्लॉय मोर देन वन डिसेबिलिटी है, वहां पर मेडिकल बोर्ड, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर X देखिए ऑफ द RPWD एक्ट 2016, राइट ऑफ द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, सेक्शन 49 ऑफ 2016, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि हु आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज टू इश्यू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कवर्ड अंडर CGHS डॉक्टर, नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई स्पेशलिस्ट एक्चुअली डिसेबल एम्प्लॉय को ट्रीट कर रहा है वो है, और मोर देन वन डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज में मेडिकल बोर्ड। और आप RPWD एक्ट 2016 का सबसेक्शन 49 देखिए और चैप्टर X, चैप्टर 10 देखिए, ठीक है। और रूल 19(2)B इसमें दिया है, कोई डिसेबिलिटी रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट, क्या उसके लिए कोई रिफरेंस चाहिए? तो वही नो रिफरल रिक्वायर्ड डिसेबिलिटी रिलेटेड मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। द एम्प्लॉय डज नॉट नीड एनी रिफरल और रिकमेंडेशन फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑफिस टू ऑब्टेन ए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ओके, जो कंसर्न डिसेबल एम्प्लॉय है उसको कोई रिफरल का जरूरत नहीं है, कोई रिकमेंडेशन का जरूरत नहीं है हेड ऑफ द ऑफिस से और एनी अदर अथॉरिटी से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए। ये रूल 19(2)B बोल रहा है, रूल पोजीशन देखिए, ठीक है। अच्छा, रूल 19(3) को देखेंगे, इसमें दिया है सेकेंड मेडिकल ओपिनियन। मैं बताया था अभी, फर्स्ट मेडिकल सर्टिफिकेट आप सबमिट कर दिया, उसमें रिकमेंड नेचर ऑफ इलनेस, ओके, एंड रिकमेंड कर दिया 60 डेज लीव, रिकमेंड कर दिया 60 डेज लीव रिकमेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो 60 डेज, सपोज बेसिकली नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय फॉर्म 4, गेजेटेड एम्प्लॉय फॉर्म 3, तो उसमें तो नेचर ऑफ क्या इलनेस है और रिकमेंड इलनेस को डिटेक्ट करके सपोज आप कितना दिन लगेगा फिट होने के लिए, रिकमेंड कर दिया 60 डेज लीव। अच्छा, ये कौन सा लीव अकाउंट में आप डिसाइड कीजिए, चाहे आप EL लेना चाहते हो तो EL लो, आपका HPL है तो ट्वाइस HPL, तो एक कम्यूटेड लीव हो जाएगा।
चाहे ईओएल ले सकते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट पे, और ये लीव नॉट ड्यू, सपोज आपका कोई लीव नहीं है तो एलएनडी ले सकते हो। एलएनडी में क्या है, आगे में जो फ्यूचर में जो एचपीएल मिलेगा उससे वो एडजस्ट होगा, समझ रहे हैं? तो ये सब चीज है। मगर इस केस में डाउट किया सपोज लीव अथॉरिटी ने, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट आप फॉरवर्ड करोगे लीव अथॉरिटी को, लीव अथॉरिटी उसको एग्जामाइन करेगा, तो आपको वेट करना है सैंक्शन ऑफ द लीव अथॉरिटी। तो सेकेंड मेडिकल ओपिनियन वो सोचा कि 60 डेज लीव ना, वहां पर गवर्नमेंट वर्क हम पर हो रहा है, जो पब्लिक को हम सर्विस दे रहे हैं वो डिले हो रहा है, तो इसके लिए वो सेकेंड मेडिकल ओपिनियन चाहा लीव अथॉरिटी ने, ये भी हो सकता है। और जो इसमें क्लियरली है, जो मेडिकल सेकेंड मेडिकल ओपिनियन जो मेडिकल ऑफिसर, उसका मिनिमम रैंक सिविल सर्जन और स्टाफ सर्जन होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जो मिनिमम रैंक है जो सेकेंड मेडिकल ओपिनियन के लिए, जो मिनिमम रैंक रहेगा मेडिकल ऑफिसर का, सिविल सर्जन और स्टाफ सर्जन, ठीक है। तो सपोज सेकेंड मेडिकल ओपिनियन में हो सकता है, सेकेंड मेडिकल ओपिनियन में वो बोल दिया इलनेस तो ठीक है, मगर रिकमेंड कर दिया 40 डेज नॉट 60 डेज, 40 डेज में फिट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो सेकेंड मेडिकल ओपिनियन हो सकता है। रूल देखिए 19(3) सबसेक्शन 3। अच्छा, नेक्स्ट रूल को चलेंगे। सेकेंड मेडिकल ओपिनियन में भी रूल 19(4) बोल रहा है एग्जामिनेशन आएगा, जो सेकेंड मेडिकल ओपिनियन का एग्जामिनेशन कैसे एग्जामिन होगा, whether the employee is actually suffering from the illness mentioned in the medical certificate, जो फर्स्ट मेडिकल सर्टिफिकेट मिला है, क्या जो इलनेस मेंशन है, जो नेचर ऑफ इलनेस मेंशन है, क्या एक्चुअली वेदर द कंसर्न एम्प्लॉई इज सफरिंग इन दैट इलनेस, वो एग्जामाइन होगा। सेकेंड है कितना अमाउंट ऑफ लीव रिकमेंड किया गया है, वेदर द अमाउंट ऑफ लीव रिकमेंडेड इज मेडिकली नेसेसरी, ये दो चीज को सेकेंड मेडिकल ओपिनियन में एग्जामाइन किया जाएगा। क्या जो नेचर ऑफ इलनेस है क्या वो सही है, क्या वो जो रिकमेंडेशन दिया गया है, जो क्वांटिटी ऑफ लीव, क्या वो सही है? तो यहां पर मेडिकल ऑफिसर एग्जामाइन द एम्प्लॉय पर्सनली, सेकेंड मेडिकल ओपिनियन में बोला अभी मिनिमम रैंक क्या होना चाहिए, सर्जियन और स्टाफ सर्जियन, यही है। तो एग्जामाइन द एम्प्लॉय पर्सनली, और ये वो मेडिकल ऑफिसर डायरेक्ट द एम्प्लॉय टू अपीयर बिफोर अनदर मेडिकल ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय हिम फॉर एग्जामिनेशन, जो एक मेडिकल ऑफिसर वो नॉमिनेट करेगा अनदर मेडिकल ऑफिसर को आपको एग्जामाइन करने के लिए, तो खुद पर्सनली एग्जामाइन कर सकता है, नहीं तो वो रिकमेंड करेगा, इट मींस मेडिकल ऑफिसर वो और एक मेडिकल ऑफिसर को रिकमेंड करेगा आपको एग्जामाइन करने के लिए। क्या एग्जामाइन करेगा कि जो फर्स्ट मेडिकल सर्टिफिकेट में जो इलनेस, नेचर ऑफ इलनेस है, क्या वो सही है, और जो आपका फिटनेस के लिए जो क्वांटिटी ऑफ लीव रिकमेंड किया गया है, क्या वो सही है, ठीक है कि नहीं? तो ये दो चीज याद रखिए, खुद मेडिकल ऑफ सेकेंड जो मेडिकल ओपिनियन के लिए खुद मेडिकल ऑफिसर एग्जामाइन कर सकता है, नहीं तो ही मस्ट रिकमेंड अनदर मेडिकल ऑफिसर ओके टू एग्जामाइन द कंसर्न एम्प्लॉय, ये रूल 19(4) बोल रहा है। क्लियर? 19(5) क्या है, ये इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था कि वंस मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू हो गया, क्या आपको लीव मिल जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू होने से? ये नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू होगा, आप उसको फॉरवर्ड करोगे एप्लीकेशन के साथ, फिर वेट करोगे लीव अथॉरिटी का डिसीजन। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मेरा तो मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू हो गया और मुझे रिकमेंड कर दिया डॉक्टर ने 20 डेज लीव कि 10 डेज लीव, तो मुझे लीव ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको आपका नेचर ऑफ इलनेस को डिटेक्ट किया और वो रिकमेंड किया, तब आप वो मेडिकल सर्टिफिकेट को एप्लीकेशन के साथ फॉरवर्ड करना है लीव अथॉरिटी को, देन वेट करना है लीव अथॉरिटी का डिसीजन, ये रूल 19(5) बोल रहा है, ठीक है। चलो लास्ट है 19(6), इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था, मैं बताया था मेडिकल ग्राउंड में आप छुट्टी ले रहे हो तो अप टू 3 डेज, आप देखिए अप टू 3 डेज लीव अथॉरिटी ने, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है ओके टू एग्जेम्प्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके पास पावर है, वो लीव अथॉरिटी ने जो डिसीजन लेगा कि आपको अप टू 3 डेज मेडिकल ग्राउंड में, सपोज आप बोल रहे हो कि मुझे फीवर है, कि कोई भी इलनेस आप बोल रहे हो, अप टू 3 डेज छुट्टी ले रहे हो, और लीव अथॉरिटी ने वेव कर सकता है मेडिकल सर्टिफिकेट सपोज लीव अथॉरिटी का डिसीजन, ये नहीं कि कंपल्सरी मैंडेटरी है, लीव अथॉरिटी का डिसीजन, मगर मोर देन 3 डेज इलनेस ग्राउंड में आप छुट्टी ले रहे हो तो कंपल्सरी मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। मगर यहां पर एक छूट है, अप टू 3 डेज लीव अथॉरिटी हैज डिस्क्रिशनरी पावर टू वेव द मेडिकल सर्टिफिकेट,
समझ रहे कि नहीं। और एक मजा है, मैं बार बार बता रहा हूं कि मेडिकल ग्राउंड में, सपोज मेडिकल ग्राउंड में आप जो छुट्टी ले रहे हो, मेडिकल ग्राउंड में आप जो मेडिकल लीव ले रहे हो, क्या ये स्पेशल लीव है? ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल ग्राउंड में आप छुट्टी ले रहे हो, ओके, मेडिकल ग्राउंड में आप छुट्टी ले रहे हो, कोई भी इलनेस बोलकर, मगर आपका जो लीव अकाउंट है वहां से डेबिट होगा, मगर मेडिकल ग्राउंड में आपको छुट्टी मिलेगा। तो मेडिकल ग्राउंड में छुट्टी मिल रहा है मींस मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। और उसमें आपका इस तरीके का मेडिकल लीव एक स्पेशल लीव नहीं है, आपका लीव अकाउंट जो है, चाहे ईएल है, एचपीएल है, उसी से ही वो डेबिट होगा। अभी क्लियर अंडरस्टूड? तो ये रूल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसीएस लीव रूल्स 1972 का। तो आज मैं रूल 17 और 19 डिस्कस किया क्योंकि रूल 18 डिलीट है। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट you can get notification for upcoming videos. आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।